Okay, Sai Ram. Let us chant Omkar 3 times, then we shall begin. Om. 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 Sai Ram. Okay, so we are discussing about principles of scientific management or F.W. Taylor's principles of management. Okay, so yesterday we discussed that there are two important management thinkers. One is Henry Fayol and other is the F.W. Taylor. The first discussion is given about F.W. Taylor. He is known as father of scientific management. So he has defined the term scientific management and he has suggested principles and techniques of scientific management. Okay, so F.W. Taylor has given 5 principles. First principle that was science, not rule of thumb, which requires that management decisions should be based on logic and inquiry rather than based on personal judgment or rule of thumb, hit or miss method. Second principle he gave to harmony, not discord. That means workers and management should have harmony or positive thoughts for each other. They should not have any conflict. Because of conflict of workers and management, there was a lot of loss of production. We suggested that there must be harmony, not discord. And for that, he suggested mental revolution. That means change in the thinking, change in the attitude of workers towards management, and change in the attitude of management towards workers. So he suggested that both the sides should think that both are essential. ना तो वर्कर्स के बिना फैक्ट्री चल सकती है और अगर फैक्ट्री नहीं होगी तो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे सो दैट वे बोथ आर इम्पोर्टेंट तो दैट इज एंड थर्ड प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है ना कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ओके so this is the extension of harmony not discord the principle of cooperation not individualism is further extension of principle of harmony not discord if there will be harmony among the workers and management then only cooperation is possible without harmony cooperation is not possible so first he suggested that there must be harmony and then he said there must be complete cooperation between management and labor unions and workers and different departments of the organization so there should be complete cooperation between labor and management instead of individualism means in place of I they should use the word we I am doing this no this is not the right word either it is a management or labor union they should
say we are doing it. So the term I should be replaced by B. That is the symbol of cooperation, collectiveness. No, I have done this or you have done this, that is not the right thing. So he said that there must be cooperation. This principle is an extension of harmony, not discord. Competence should be replaced by cooperation. Both should realize that they need each other. है ना? तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? टेलर ने सजेस्ट किया कि मैनेजमेंट शुड बी ओपन टू लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स. Management should establish or should invite suggestions from workers, and if workers give some innovative ideas, good ideas, their suggestions, their ideas should be accepted and they should be rewarded for good suggestions. No? And if some worker give a good suggestion which is helpful in reducing the cost of production, जरूरी नहीं कि आइडियाज केवल मैनेजमेंट के पास ही होंगे. Workers also may have the good ideas which are helpful in reducing the cost of production. In that case, management should accept the suggestion and reward the worker for his good suggestion. Okay. On the other side, from a labor point of view, he said that labor should not put unnecessary demands. ना उनको देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास उतना प्रॉफिट है भी कि नहीं, जितना वो डिमांड कर रहे हैं कंपनी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी. दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक्स, क्योंकि स्ट्राइक में जब वर्कर जाते हैं तो फैक्ट्री का बहुत लॉस होता है. ओके. एंड दे शुड peacefully talk to the management about their problems in place of going for the strikes. So this will create a congenial environment, favorable environment, and workers and management will become friends. Okay. So that is the cooperation, not individualism. The complete cooperation, not individualism. And last principle, fourth principle, he gave development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. This is the principle totally dedicated to the workers. So Taylor knew very well that industrial production can be increased only if we have skilled labor, trained labor, competent labor. No? So whatever scientific approaches we want to use, whatever methods we want to use, that is possible only if we will give systematic training to the workers about those methods or those activities. We suggested that it is the duty of management that first of all they should select the employees in a scientific manner. Okay, they should check the efficiency of the employees at the time of selection, and if once a person is selected, then work should be assigned according to his physical and mental capabilities. And even after doing this, if workers find any problem in doing the task, management should give them training. And training and development should be a continuous feature of the management. So workers, those who have the ability to grow, they can grow and they can be promoted from lower positions to the higher positions. That is the principle which says development of each and every person to his or her greatest efficiency. Greatest efficiency में जितना कोई develop हो सकता है उतना डेवलप होने का उसको मौका देना, ट्रेनिंग देना और प्रमोशन देना. दैट इज नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशंस. So these four principles are given by Taylor. Okay. अब है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. वो क्या क्या आप लोग के पास है बीएस की? सैराम. Yes, sir. ठीक है. तो टेक्निक्स मींस दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट द concept which is given by Taylor. So Taylor not only gave the concept but he also suggested some techniques which are important for implementation of scientific management. What are these are very important techniques suggested by Taylor. Let me share the screen. We will discuss.
Okay. So now the first technique of scientific management suggested by Taylor is the functional foremanship. Functional foremanship. This term just we have discussed somewhere. Foreman हमने कहीं डिस्कस किया था, कोई बताएगा कहाँ पे डिस्कस किया था फोरमैन? सुपरवाइजरी लेवल। हाँ, ये सुपर वो तो फोरमैन इज सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर है ना. तो व्हाट टेलर सजेस्टेड और व्हाट डज इट से, व्हाट डज दिस टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप से? तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, है ना. दिस इज वेरी की वर्ड. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, टेलर सजेस्टेड the concept of functional foremanship, है ना. टेलर सजेस्टेड द कंसेप्ट ऑफ, समझ में आ रहा है क्या आपको? पर्पज क्या है इस कंसेप्ट का? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, है ना. आगे लिखिए. टेलर बिलीव्ड दैट टेलर बिलीव्ड दैट वन सिंगल फोरमैन या सुपरवाइजर, वन सिंगल फोरमैन और सुपरवाइजर may not be able to one single foreman or supervisor may not be able to supervise all the dimensions of all the dimensions of a worker's work, all the dimensions of a worker's work. So he decided to separate thinking and doing. He decided to separate thinking and doing. तो थिंकिंग को उसने नाम दे दिया प्लानिंग, ठीक है. तो द टेलर डिवाइडेड द functions of a foreman in two departments or two parts. समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? यस सर। पहला प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्शन, यानी थिंकिंग, और दूसरा है डूइंग यानी प्रोडक्शन. तो प्लानिंग इंचार्ज हो गया एंड प्रोडक्शन इंचार्ज हो गया, है ना. अब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर अगेन 4 persons विल बी देयर. इन प्लानिंग डिपार्टमेंट देयर विल बी 4 persons एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो देयर विल बी 4 persons. तो कितने वर्कर मिला के? 4 + 4, ठीक है. तो द वर्क ऑफ वन फोरमैन इज डिवाइडेड by the tailor into 8 persons. Now in place of one supervisor supervising the worker, now 8 different persons will be supervising the worker but on different aspects. ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हर आदमी एक ही चीज को नहीं देखेगा, जिसका जो काम वही देखेगा ऐसे. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 लोग होंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 लोग होंगे. तो प्लानिंग में कौन कौन से नाम दिए उसने? एक तो पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होगा? ही विल ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस. वर्कर को काम करते वक्त कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ड्राफ्ट करेगा, कार्ड बनाएगा और वर्कर को देगा. उसका इतना काम है, बाकी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा. ठीक है, समझ में आया साईराम? यस सर। दूसरा है रूट क्लर्क. रूट क्लर्क ये बताएगा कि व्हाट विल बी द रूट ऑफ द वर्क, यानी फ्लो ऑफ वर्क कैसे होगा. पहले कौन सा एक्टिविटी करोगे? पहले क्रशिंग करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे, फिर ये करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रूट, है ना. जैसे हम रास्ता हमारा होता जाने आने का, ऐसे ही फैक्ट्री में जो
सीक्वेंसिंग ऑफ द वर्क जो होती है उसको बोलते हैं रूट, है ना, सीक्वेंसिंग ऑफ वर्क। सीक्वेंसिंग ऑफ वर्क जो है कि वर्कर को कौन सा रूट फॉलो करना है, यानी किस सीक्वेंस में काम करना है, हाउ द वर्क विल बी कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड रूट। तो दैट रूट विल बी डिसाइडेड बाय द रूट क्लर्क। तो ये अपना रूट डिसाइड करेगा और वर्कर्स को बताएगा, है ना। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये जो मैंने बताया था कि टेलर ने हर चीज का स्टडी किया, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया, तो ये जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, ही विल रिकॉर्ड टाइम टेकन बाय ईच वर्कर इन कंप्लीटिंग द टास्क एंड कॉस्ट इनकर्ड। कितना टाइम लिया वर्कर ने काम कंप्लीट करने में और कितना खर्चा हुआ उस काम को कंप्लीट करने में, दैट विल बी रिकॉर्डेड बाय टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन जो है वो ओवरऑल डिसिप्लिन देखेगा कि चीजें ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई इनडिसिप्लिन का एक्ट तो नहीं है, टाइम से लोग आ रहे हैं जरा, जैसा हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग है डिसिप्लिनरी, वो ये देखेगा, है ना। तो इसका काम यही है कि ये टू मेंटेन द डिसिप्लिन। ठीक है। अब तो चार लोग हो गए प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट में, ये थिंकिंग वाला काम है इनका बेसिकली। अब चार लोग हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं? पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस विल चेक वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन विद प्रॉपर स्पीड और नॉट। मजदूर बैठ के बीड़ी तो नहीं पी रहे, कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर स्पीड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो स्पीड मेंटेन करना, दैट इज चेक बाय द स्पीड बॉस वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन विद प्रॉपर स्पीड और नॉट। गैंग बॉस, गैंग बॉस जो होता है वो समझ में आता है आपको? लीडर ऑफ द टीम, उसको गैंग बॉस बोलते हैं। सात आठ लोग के ऊपर, 10 लोग के ऊपर एक होता है, वो गैंग बॉस होता है। तो गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज एट द वर्क प्लेस। तो प्रोडक्शन साइट पे जो भी मटेरियल चाहिए या अदर रिसोर्सेज चाहिए, उनको सप्लाई करने का काम गैंग बॉस करेगा, है ना। तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट गैंग बॉस, ही विल बी द बॉस ऑफ दैट गैंग, है ना, अरेंजिंग द रिसोर्सेज, डिवाइडिंग द वर्क अमंग देम, तो ये सारे काम वो करेगा। तीसरा होता है हमारे पास रिपेयर्स बॉस। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, रिपेयर्स बॉस का काम क्या है कि अगर बीच में मशीन खराब हो गई, इक्विपमेंट खराब हो गया, तो उसको तुरंत रिपेयर करना है, जिससे कि मशीन जो काम है वो अफेक्टेड नहीं होगा, स्पीड ऑफ द वर्क कैन बी मेंटेन्ड। तो दैट रिपेयरिंग विल बी डन बाय द रिपेयरिंग बॉस। और चौथा होगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर विल चेक द क्वालिटी, है ना, स्टैंडर्ड जो हमने क्वालिटी का फिक्स किया है, वेदर द आउटपुट इज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, है ना, जैसा हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वालिटी का, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट विल बी चेक बाय द इंस्पेक्टर। सो ही विल इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। So these four persons will be there in the production department. So Taylor suggested that one single person cannot have all these qualities, and hence he will not be able to look after all the dimensions of a worker's work. So in place of uh, one supervisor or one foreman, a worker at work should be supervised by eight different foremen, eight different supervisors, though each of them will be supervising a separate aspect. आप देखो हर एक का काम अलग अलग है, कोई दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो डिस्पाइट ऑफ 8 persons आर सुपरवाइजिंग, बट स्टिल देयर एरिया ऑफ एक्टिविटी इज डिफरेंट। फिर टेलर ने इसको नाम दे दिया फंक्शनल फोरमैनशिप, डिवीजन ऑफ फंक्शंस ऑफ फोरमैन among 8 different persons, that is called functional foremanship. क्लियर है क्या कंसेप्ट है राम? Yes, sir. आपकी बुक में चार्ट भी बना के दिया हुआ है इसका, ये पूछा भी बहुत जाता है फंक्शनल फोरमैन से, है ना। तो ये वर्कर है, वर्कर के ऊपर 8 लोग बैठे हुए हैं जो उसको देख रहे हैं। 4 लोग प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन जो इंचार्ज के अंदर में, 4 लोग प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में। अब आ जाएगा कुछ तो उल्टा सीधा करेगा तो उनको पकड़ में आ जाएगा। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैन। सेकंड कंसेप्ट गिवन बाय टेलर इज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर गेव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे ज्यादा फोकस टेलर का इसी पे था, स्टैंडर्डाइज करने पे। ही वांटेड दैट एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज। ओके,
So standardization and simplification. What is the meaning of standardization? Standardization refers to the process of standardization refers to the process of setting standards. है ना? Setting standards for every business activity. Taylor wanted to have standard for everything. So setting standards for every business activity. That is said standardization. Okay. Like standardization of process, है ना? Standardization of material, raw material, standardization of machines and equipments, standardization of time to complete the work, standardization of method, standardization of working conditions. कैसी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए जिसमें वर्कर काम करेगा. दे ऑल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस. कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना मॉइस्चर होना चाहिए, दैट ऑल्सो बी स्टैंडर्डाइज, है ना. ओके. सो प्रोसेस, मटेरियल, मेथड, इक्विपमेंट, एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज. इवन सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको होता है ना, सिलेक्शन प्रोसेस एम्प्लॉइज का, वर्कर को जो सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा प्रोसेस है उसको भी स्टैंडर्डाइज करेंगे. आउटपुट का जो आउटपुट की क्वालिटी है दैट शुड बी ऑल्सो स्टैंडर्डाइज, है ना. So he suggested that we should fix a standard for all these things. Standard. Why he suggested that standards are needed? Okay. So he suggested three things. That's why he suggested standardization to reduce a given line for product to fix type, size and characteristics. तो कोई भी डिजाइन बन जाएगा, कोई भी साइज बन जाएगा, इसको खत्म करके कुछ हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि इसी साइज का, इसी कलर का, इसी टाइप का हम प्रोडक्ट बनाएंगे. दैट इज पॉसिबल बाई स्टैंडर्डाइजेशन. पहली चीज. तो जितनी दुनिया भर के हम वैरायटी बना रहे होंगे वो दैट इज यूजलेस. तो पहली चीज तो हम वी विल बी एबल टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे हमको नहाने का साबुन बनाना है तो हमको फिक्स कर दिया कि हर एक साबुन का वेट जो है 50 ग्राम होगा, उसका कलर ये होगा, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स रहेंगे. दैट इज स्टैंडर्डाइज. So now it is easy to have that much machines and equipment, training to the staff, labor, that is possible because of standardization. दूसरा, to establish interchangeability of manufacture parts and products. ये बड़े स्केल की बात है. स्टैंडर्डाइजेशन होने से क्या होता है कि पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स में इंटरचेंजेबिलिटी आ जाएगी. कैसे आएगी देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल आपको. आपके यहाँ बहुत लोगों के पास कार है, ठीक है साईराम, और कार का टायर खराब हो गया, आपको टायर चेंज करना है अपनी कंपनी की कार का, ठीक है. तो कौन सी कंपनी का टायर लाएंगे आप? जिस कंपनी की कार है उसी कंपनी का टायर लाएंगे या किसी भी कंपनी का टायर लाके चेंज कर सकते हैं हम? साईराम. जिस कंपनी की कार है. नहीं, यही दिक्कत है. आप किसी भी कंपनी का टायर लाके डाल सकते हो उसमें, ठीक है, वो स्टैंडर्ड है. पहली बात तो जो कार कंपनी है वो टायर बनाती नहीं है. तो टायर बनाने वाली कंपनियां दूसरी हैं, एमआरएफ का ले आओगे और कौन कौन सा था जो दूसरी कंपनियां, उनमें किसी का भी टायर लाओगे वो आपकी कार में लग जाएगा. क्यों लग जाएगा? क्योंकि जो व्हील का जो साइज है वो स्टैंडर्डाइज किया हुआ उन लोगों ने. आप मॉडल बताओगे इस मॉडल की कार है तो उसका जो व्हील है वो स्टैंडर्डाइज है, तो उसमें फिर आपको इंटरचेंजेबिलिटी मिल गई. जरूरी नहीं आप एक्स कंपनी का ही टायर लेके आओगे तभी डाल सकते हो. बाय कंपनी, जेड कंपनी, जो भी आपको लगता है उसका टायर मिलेगा, आप उसमें यूज कर सकते हो. उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, कोई सी कंपनी को आप उनको उसमें इंटरचेंज कर सकते हैं. तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो होता है स्टैंडर्ड्स आर द पैरामीटर्स टू जज द परफॉर्मेंस.
स्टैंडर्ड के बेस पे हम जज कर पाएंगे कि परफॉर्मेंस ठीक है मैन और मशीन की कि नहीं है, जितना काम करना चाहिए था उतना काम हुआ कि नहीं है. सो वी जज एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. एंड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन क्वालिटी एंड मटेरियल. स्टैंडर्ड हेल्प करता है हमारा एक्सीलेंट क्वालिटी अचीव करने में. अगर हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाएंगे तो हम क्वालिटी अपनी इंप्रूव कर पाएंगे. तो दैट वे टेलर सजेस्टेड दैट एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज. दूसरा उसने बोला सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वैरायटीज साइज एंड डायमेंशंस. है ना, अननेसेसरी बहुत सारी वैरायटी नहीं रखना है ना. कई कई होटल में आप जाओगे खाना खाने तो वो मालूम चलता है कि वो 20-25 तरह की सब्जी रख देंगे थाली में. अब आदमी खाएगा कितने उसमें से, मतलब तो कोई नहीं, फालतू जाती है सब वो. तो इससे अच्छा क्या होगा कि 2-3 सब्जी बहुत है अच्छी बनाएंगे तो दैट इज सफिशिएंट. तो टेलर वांटेड दैट इन प्लेस ऑफ हैविंग 10-20 varieties of the same product, that is unnecessarily we have different types of machines, equipment चाहिए. हर एक साइज के लिए अलग से मशीन चाहिए, उसका लेबर चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए. तो he wanted that we should simplify the production processes, we should simplify the designs, and we should have as less number of varieties as much possible. So he wanted simplification of all these things, है ना. तो जब सिंप्लीफिकेशन होगा तो फायदा क्या होगा उससे. unnecessary diversity of product will be reduced. It result in saving of cost of labor, machine and tools. है ना. तो कम आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के मशीन और टूल्स नहीं रखने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स की ट्रेन स्टाफ नहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव लेस नंबर ऑफ वेराइटीज, सो वी नीड less type of machines and equipments, materials for less designs. That is also possible to have less number of staff. So that will reduce the cost of production. So that we suggested that simplification. So we are two together. Standardization, that means fixing the standards for each and everything so we can compare the actual performance with the standard performance, and we can come to know whether the work is going on satisfactorily or not. And then we have to simplify, we have to eliminate superfluous, eliminate unnecessary diversity of products. That should be eliminated. तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक दी. अब इसके बाद इसका है वर्क स्टडी. टेलर का तीसरा जो टेक्निक है वो वर्क स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ही है. वर्क स्टडीज में क्या है. वर्क स्टडीज ऑफ टेलर, इसमें पहला है मेथड स्टडी. दूसरा है मोशन स्टडी. तीसरा है टाइम स्टडी. चौथा फैटिग स्टडी. ठीक है. तो ये चार स्टडी टेलर ने दिए हैं. मेथड स्टडी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल, है ना. देयर मे बी मैनी मेथड्स अवेलेबल टू परफॉर्म ए टास्क. So Taylor suggested that first of all we should list out all the alternative methods which are available. Then list out merits and demerits of each method, that this is the advantage if we will use this method and this is the disadvantage of this method, and then select the best out of these. उसके बाद हमको जो सबसे बेस्ट मेथड लगती है फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू सेलेक्ट दैट मेथड एंड एवरीवन will need to follow that method only. That is called method study. So method study is conducted to select the best method. Best का मतलब ये होता है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सी है, दूसरे का बेस्ट होगा कि नहीं वो नहीं देखना है. According to our conditions we have to find out best method for ourselves. समझ में आ रहा है आपको ये. साईराम, साईराम. Yes, sir. So method study means the study of alternative methods available so we can select the best method. Okay. जैसे
हमको एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग देना है। अब ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हो सकते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हो सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा पहले, ऑर्बिट्रेरली डिसाइड करने की बजाय कि हाँ ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करें। हम पहले क्या करें, सारी मेथड्स को फाइंड करें कि कौन कौन सी मेथड्स पॉसिबल हैं ट्रेनिंग के लिए, किस किस मेथड से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिर वो लिस्ट बनाने के बाद मेथड्स की फिर एक और चार्ट बना लें कि अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो उसमें कॉस्ट इतनी आएगी, है ना, टाइम इतना लगेगा, एम्प्लॉइज को आसानी होगी समझने में कि मुश्किल होगी उसको समझने में। तो दिस वे वी कैन लिस्ट आउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ईच मेथड, है ना। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि इस मेथड का ये फायदा है, एडवांटेज इस मेथड का, और इस मेथड का ये डिसएडवांटेज है। और लास्ट में सारे मेथड्स का एक कंपैरेटिव स्टडी करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड हमारे लिए सूटेबल है। दैट मेथड वी कैन सिलेक्ट, दैट विल बी बेटर मेथड एज कम्पेयर टू ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। दूसरा जो है मोशन स्टडी है। मोशन स्टडी मैंने कल बताया था आपको। मोशन स्टडी द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। टेलर वांटेड दैट we should list out the necessary motions to perform a task। तो उसने बोला कि पहले हम एक लिस्ट बनाए कि वर्कर काम करते वक्त कौन कौन से बॉडी पार्ट का मूवमेंट करता है। अब उसमें से फिर पता लगाएं कि कौन सा मूवमेंट इसमें से नेसेसरी है और कौन सा अननेसेसरी है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, नेसेसरी मोशंस एंड अननेसेसरी मोशंस, है ना। Because he believed that every motion of body consumes energy, and because of large number of motions, consumption of energy is faster and workers get tired very soon। मैं आपको साईराम। यस सर। तो जो आपने अभी इंस्ट्रक्शन कार्ड जो क्लर्क पढ़ा ना, वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ड्राफ्ट करेगा कि ये काम करते वक्त आपको केवल ए वाला मूवमेंट करना है, बाकी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी आपकी। So that is a list of motion will be given to the worker, that while doing this task, these motions are allowed, permissible motions, and these motions are not allowed। So productive motions, incidental motion, and unproductive motion। तो unproductive motion तो बिल्कुल करना ही नहीं है, there no need of that। ठीक है, उसने उसके लिए एक एग्जांपल दिया कि जो ब्रेक हैंडलिंग करने का काम होता है, देखा होगा आपने, ईंट का ट्रक जब आता है तो कई जगह तो क्या होता है कि एक लेबर का जो मजदूर होता है वो ट्रक तक जाता है, अपनी सिर पे 4 5 10 ईंट रख के ले जाता है, फिर डाल के आता है, वहां पे खुद दोबारा आता है। और कई जगह आपने देखा होगा एक चेन बना लेते हैं वर्कर्स, 2 3 बार लेबर खड़े हैं, एक ट्रक के ऊपर खड़ा है, दो एक बीच में, फिर एक और 4 5 लोग खड़े हो गए, एक दूसरे को थ्रो करते जा रहे हैं। दोनों में क्या फर्क पड़ा सही राम? दोनों मेथड्स में क्या फर्क है? हर इंडिविजुअल की एनर्जी बच गई और काम भी जल्दी खत्म जब हो वो गया। वर्कर अगर ईंट उठाएगा तो खुद ही पूरा चल के जाएगा, पूरा बॉडी मूव करेगी, उसको झुकेगा, उठाएगा, लेके जाएगा, चल के जाएगा, टायर्ड जल्दी होगा। अब यहाँ उसको खड़े खड़े ही केवल कैच करना है ना। तो ऊपर का जो पार्ट है, हैंड्स और जो बॉडी ऊपर का, उतना ही मूवमेंट हो रहा है उसका, एंड ही इज थ्रोइंग इट, सो एनर्जी कंजम्पशन विल बी लेस बिकॉज नंबर ऑफ मोशंस विल बी रिड्यूस, है ना। दैट इज द एडवांटेज ऑफ मोशन स्टडी। सो ही वांटेड दैट we should list out the productive motions and unproductive motions, and workers should be asked to perform only productive motions। फिर टाइम स्टडी है। टाइम स्टडी द स्टडी to fix the standard time to complete a specific task, है ना। What should be the standard time to complete a task? कितने काम में करेगा, कितनी देर में करेगा, ये नहीं छोड़ सकते ऐसे ही ब्लाइंडली कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नो। टेलर वांटेड दैट we should fix the standard time to complete each and every task। So for this he suggested that we should select a average worker। बहुत डल नहीं होना चाहिए, बहुत शार्प भी नहीं होना चाहिए काम में। सेलेक्ट एवरेज वर्कर, सेलेक्ट एवरेज वर्किंग कंडीशंस, सेलेक्ट नॉर्मल मटेरियल्स जो आप नॉर्मली यूज करते हैं वो, सेलेक्ट नॉर्मल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स जो आपके यहाँ अवेलेबल रहते हैं हमेशा,
and take a stopwatch and ask the worker to start the work. And that whatever time that worker will take, जो एवरेज वर्कर है एवरेज कंडीशंस में जो भी टाइम उसको लगेगा कंप्लीट करने में, that will be fixed as a standard time to complete the task. Everybody will be expected to complete the task within that time. तो जो आगे चलेंगे डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम है टेलर का. डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम डिपेंड्स ऑन दिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम. अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. We wanted that time, standard time should be fixed for each and every work, and that will make the workers efficient. क्योंकि लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे टाइम पर, उनको पता रहेगा कि स्टैंडर्ड टाइम इतना है, we have to complete the time, work within this time. और लास्ट है फैटिग स्टडी. इट इज वेरी मच क्लोज टू द मोशन स्टडी. फैटिग स्टडी, टेलर सजेस्टेड दैट we should study that after how much time worker get tired or fatigued. So when they get tired, they should be given proper rest interval to regain their energies. So Taylor suggested rest interval in between the work hours, so workers can get the energy back. जो एनर्जी कंज्यूम हो गई उनकी उसको मिल जाएगी. तो पहले टेलर से पहले लंच ब्रेक या जो ब्रेक होते थे वो नहीं होते थे. वर्कर्स वर सपोज टू वर्क फॉर 10 आवर्स कंटिन्यूसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. 10 घंटे का काम होता था पहले, 12 घंटे होता था कई समय तो 10 घंटे का, लेकिन बीच में कोई ब्रेक नहीं होता था. तो टेलर जब आया तो टेलर ने बोला कि वी शुड ब्रेक देम इन बिटवीन. तो ओनर्स ने बड़ा पूछ किया कि वर्कर्स को क्यों टाइम देना, आधा घंटा 1 घंटा फालतू जाएगा. तो टेलर ने अपने फैक्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया. उसने 2 ग्रुप बनाए वर्कर्स के. एक ग्रुप को बीच में लंच टाइम या ब्रेक टाइम नहीं दिया और दूसरे को ब्रेक टाइम दिया. और जो उसके जो स्टडी के जो कंक्लूजन था वो ये था कि जिसको ब्रेक टाइम दिया था उसको उसका जो आउटपुट था उस कंपैरिजन में जिनको ब्रेक टाइम नहीं दिया, दैट वर 20 to 25% मोर. ब्रेक टाइम देने वाले ग्रुप को उनका आउटपुट 20% ज्यादा आया. तो ही सजेस्टेड दैट बिकॉज व्हेन वी गिव ब्रेक टाइम workers regain their energies and they start working with the full speed. And otherwise their speed gets slow and their output is reduced. So Taylor suggested that after a regular time interval we should give the rest for workers or interval time for the workers so they can regain their energies. So that is called fatigue study. Okay, बस इतना ही आज के लिए. तो अब इसकी 2 और बचे हैं. डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम बचा है, एक ही है, सब फ्यूल और मेंटल रिवोल्यूशन है. ठीक है. Okay, so as per your new circular, we will have 2 more classes, 2 more days. Tomorrow is a holiday on account of Ram Navami. We will have on 22nd and 23rd. So let us have Shanti Path then. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. Sairam sir, thank you sir. Sai Ram, Sai Ram.